नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन। So based on previous year paper, I have divided the question into three type A, type B and type C. So let's start with the type A. So in type A, we will discuss about some direction. So let's go here and we will see. So in navigation, we have basically four main direction, that is north, south, east and west. So if any question will come, so we have to draw the diagram. Just here what we have to do, we have one point and we have four main direction, that is east, here we can say west, here we can say north, then this would be south. So this is the main direction we have and this is the point. So if we'll draw the line between, so this is the east, this is north, this is west, this is south. So angle between the north and east would be 90 degree. It means angle between the consecutive main direction. This is the main direction and we are representing E and W S, so that we in exam if we'll start writing like east, so it will take more time. So instead of that we are using the abbreviation for like E, N, W and S. So angle between the main direction is 90 degree and we are having four intermediate direction. So we will look into that. Also. So suppose here we have north, east. So in between them we have four more direction. Let me write. So this is between the north and east. So this will be called as northeast. And this direction is between west and south. So we will call southwest. And this would be the north and west. So we can say northwest or west north. And this is southeast. So we have four main direction and four intermediate directions. So main direction would be east, west, north, south, and four sub direction, or we can say intermediate direction, would be northeast, northwest, southwest and southeast. So and between the main angle between the main direction, consecutive direction, would be 90 degree, and angle between the main direction and this one intermediate direction would be 45 degree, because we are dividing into two. So 90, here we can write like 90 by 2, it would be 45. So this would be 45, this would be 45. So let me draw a separate diagram here. This is south. Four intermediate direction would be this one: northeast, west south, and same would be southeast, and this would be west northwest, or you can mention. So angle between this is 45 degree, and if you go, this would be also 45 degree, this is also 45 degree. So angle between one main direction and alternate this intermediate direction would be 135 degree. We will say move left, so your left would be this one, right would be this one. This is the first thing. And sometimes question will, instead of right left, they will say like, instead of right they will say clockwise, and sometimes it will say counterclockwise. Counterclockwise means opposite to clockwise. Like if in clockwise direction will move like this, in anti-clockwise it will move like this, or anti or counterclockwise. So let's see type A question and we will try to solve it. So question is like, Joe is facing towards south and turn 45 degree anti-clockwise. Here it is saying anti-clockwise. So we will look anti-clockwise, how we are going to solve. He turns again 180 degree in anti-clockwise direction. Now he turns 270 degree clockwise. Which direction is he facing? So let's draw the diagram. This would be the north, this would be the south, this would be the east, and this would be the west. We have one point here, and now
what is saying? Joe is facing toward south. He is facing toward this direction. He turned 45 degree anti-clockwise. So clockwise would be like this, but anti-clockwise. So if someone is looking here and he turned 45 degree anti-clockwise, so it will move anti-clockwise like this. So 45 degree would be just, you can try here. So this would be 45 degree. So now Joe is looking toward this direction. And then what's saying? He turns again 180 degree in anti-clockwise. So anti-clockwise 180 degree, what would be that? Simply opposite to that. So it would be 180 degree here. So 180 degree here. Now what is the question? Now he turned 270 degree clockwise. 270 degree clockwise. So we have to see clockwise would be this one. We have to move here. So this would be, this is 180 degree and more 90 degree more to reach the 270. So 180 degree plus 90 degree, this would be our 270 degree. Here 180 plus 90, 270. Then what is the question? Which direction is he facing? Now he is between the south and west. So just see southwest, option number C. So आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में आपको 4 डायरेक्शन को पॉइंट कर लेना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और फिर आपको देखना है कि किधर फेस कर रहा है. ही इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, साउथ में फेस कर रहा है, साउथ में फेस कर रहा है. फिर बोला है कि टर्न एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री वो इधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, तो इधर टर्न कर गया. फिर ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में ही फिर से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ से इधर आ गया. नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर से वो 270 डिग्री इधर आ गया, तो ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री. तो ये हमारा हो गया, और ही इज फेसिंग टुवर्ड साउथ वेस्ट. एक चीज और बता दें कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग डायग्राम जो ड्रॉ किए थे, ये एंगल बिटवीन टू intermediate direction would be 90 degree. So suppose here we have started, so this is the 90 degree and this is 45, so 90 plus 45 135, this is 45 again, because intermediate direction is dividing into two parts, 45 45. So this would be 45, this would be 45, this would be 45, and this is also 45. So whenever question will be 270 degree or whatever, so you have to look and you have to simply calculate where would be the, so from north, from west north, if someone is saying 270 degree, so it will go like 270 degree clockwise, or you can say 90 degree counterclockwise. Why I'm saying this? Because total angle is 360 degree and it is moving from counterclockwise 270. So remaining is, अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 270, अगर हमें अपोजिट से जाना होगा तो कितना होना, 90. तो हम लोग इधर से 90 डिग्री आके वो भी कर सकते हैं. ये कभी कभी ट्रिक्स के आप करेंगे नहीं तो आप ऐसे भी आगे क्लॉकवाइज आए, या आप अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इधर से भी आके चेक कर सकते हैं. 90 डिग्री करना है तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कभी. अगला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद से देखते हैं क्या क्वेश्चन. मैरी इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट for 15 miles, turn right and walk another 10 miles. See, then turn 90 degree clockwise and walk 10 miles. So let's start. In exam, don't just see the answer, means what question is asking. So here what is question is asking, which direction is she facing. तो ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या है, कि वो किस डायरेक्शन में फेस की हुई है. मैरी के बारे में बात कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन, पहले तो हम लोग पॉइंट नोट कर लेते हैं. डायरेक्शन ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, इधर नॉर्थ हुआ, इधर हुआ साउथ. अब बोल रहा है किधर, कि साउथ वेस्ट की तरफ देखिए. साउथ वेस्ट हमारा इधर हुआ, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, तो वो इधर की तरफ देख रही है. क्या बोल रहा है कि वॉकिंग टुवर्ड साउथ वेस्ट फॉर 15 माइल्स, तो ये 15 माइल्स वो इधर की तरफ चलिए. अब क्या बोल रहा है, टर्न राइट. जब यहाँ पे, जब वो साउथ वेस्ट की तरफ है, जब इसका राइट, इनका राइट क्या होगा, इस डायरेक्शन में. अनदर 10 माइल्स, वो फिर से इधर 10 माइल्स वॉक की है, तो अब इधर 10 माइल हो गया. अब डायरेक्शन किधर हो गया हमारा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ. अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं. सी देन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज इधर से आप जा रहे हो, 90 डिग्री जब टर्न की तो ये हो गई इधर 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक 10 माइल्स. तो 10 माइल्स क्या होगा, समवेयर बिटवीन दिस, यहाँ पे, तो ये 10 माइल्स हो गया.
Now C is again turns left, so left would be this direction and walk 30 miles. तो अब क्या हो गया, विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग, तो ये क्या है, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो गया। आपको क्या करना है, ये जैसे ये एब्रिविएशन दिया हुआ है EWNS, एनोटेट करके एक मिडिल पॉइंट पे लेना है और वहां से आपको मूव करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप 3 क्या है। टाइप 3 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक 20 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर 33 किलोमीटर। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो इधर हो गया 12 किलोमीटर। ही टर्न, अभी इधर डायरेक्शन है, ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ इधर, एंड वॉक 20 किलोमीटर, तो ये अब 20 किलोमीटर वॉक हुआ है, बॉय वॉक किया इधर, तो ये 20 किलोमीटर आ गया। देन ही टर्न राइट, तो अगर कोई इधर है तो जो साउथ की तरफ देख रहा है उसका राइट होगा इधर, एंड वॉकड 33 किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर्स इधर आ जाएगा। तो आप ऐसे पॉइंट पॉइंट कर लीजिए, तो ये हो गया 12, तो इधर कितना हो जाएगा 21। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है 21। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और अभी वो यहाँ पे है, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितना है 20 और ये डिस्टेंस है 21, तो हम लोग का ऐसे आ जाएगा, ये 90 डिग्री ही है और ये है 20, ये है 21, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको कर लेना है। अगर सपोज ये सी है तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, सी इक्वल्स सी स्क्वायर इक्वल्स साइड का स्क्वायर का सम, तो ये आ जाएगा, तो ये कितना होगा 841, तो हमारा सी कितना हो जाएगा 29, तो हमारा आंसर हो गया क्या, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टेट ड्राइव्स, इसके लिए भी हम लोग को जैसे क्वेश्चन मिले आप एक बार उसको पॉइंट को आप पॉइंट लगा दीजिए और डायरेक्शन को डिपिक्ट कर लीजिए, इधर हुआ ईस्ट, इधर हुआ वेस्ट, इधर हुआ नॉर्थ, इधर हुआ साउथ। अब क्या बोला है, टेट ड्राइव से कार 10 माइल्स टुवर्ड नॉर्थ, तो इधर 10 माइल्स हो गया फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस ये है, ही टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में, तो आपको पता है 270 डिग्री क्या होगा, ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ टोटल मिला गया तो 180, फिर इधर 90 हुआ तो ये हो गया 270, तो अभी वो इधर के डायरेक्शन में हो गया, इधर मतलब लेफ्ट 270 डिग्री बोला है तो, एंड ड्राइव्स फॉर 20 माइल्स, तो 20 माइल्स ये हो गया इधर इतना, 10 का 2 टाइम्स कर देंगे इधर, 20 माइल्स हो गया। अब क्या बोला, नाउ ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर 270 डिग्री बोला है तो 90 डिग्री इधर की तरफ ही होगा वो, टुवर्ड नॉर्थ, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में आप जाएंगे अगर ऐसे है तो ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 90, 270 डिग्री, तो ये इस डायरेक्शन में 270, या ड्राइव का कार 37 माइल्स, इतना जगह नहीं है तो इसको 37 समझ लीजिए। फाइनली ही रीचेज हिज हाउस आफ्टर ड्राइविंग फॉर 20 माइल्स टू द राइट, तो इधर 20 माइल्स चला, फिर जाके वो अपने घर पहुंच गया। फिर क्वेश्चन क्या बोला, हाउ फार इज टेड्स हाउस फ्रॉम द हिज ऑफिस एंड इन विच डायरेक्शन, तो बोला है कि ये अगर ऑफिस है तो उसका घर कहाँ है, उसका घर ये नॉर्थ साइड में है, तो नॉर्थ साइड में एक ही ऑप्शन है, आप इसको टिक कर सकते हैं और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो 10 माइल्स गया, फिर इधर 37 माइल्स, और अब देखेंगे कि इधर यहाँ से लेफ्ट 20 गया है और इधर से फिर से राइट उतना 20 आ गया है, तो ये दोनों नलीफाई हो जाएगा, तो मेन डिस्टेंस कितना हुआ 10 और उधर 37, तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 47 एंड डायरेक्शन हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी। रिमेनिंग पार्ट वी विल कवर इनटू नेक्स्ट वीडियो, सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।